So in our previous class we were doing some questions of exercise 1.1. We learnt about the expanded form of a number. We have also learnt about the numeral form of the number. So today we will proceed our exercise 1.1 to the next question, which is question number 5th, and you are very familiar with this kind of question. Okay, you have, what is this question? We will read it out. Arrange the following numbers in the ascending order. Okay, so you already know about the ascending orders. In the ascending order you have to arrange numbers from the smallest to the greatest number. Okay, we already learned about the smallest and how to find smallest and greatest number in our first and second lecture of this video series. So here we have a number 88,978, 8,17,576, 80,999. I should write it down first. 88,978. Then second is 8,17,576. Then I will have 80,999. फिर है मेरे पास 11,80,789. Then at last I have 8,972. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह आपको लिखना चाहिए. ठीक है, कॉमास इंसर्ट करने के बाद में वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखना चाहिए, टेंस के प्लेस नीचे टेंस प्लेस लिखना चाहिए, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख प्लेस एंड 10 लाख के प्लेस के नीचे 10 लाख प्लेस. Okay, so this is how we should write numbers. Now I have to arrange these numbers in the ascending form. So first we will find out which one is the smallest number. I have already told you about how to find a smallest number. We will look the number of digits to tell which number is the smallest or which number is the greatest. So here I am getting, this is 5-digit number, this is 6-digit number, this is also 5-digit, this is 7-digit, 4 and 3 7, and at last I have this last number which is a 4-digit number. Okay, so from the look at it I can tell that this 4-digit number is the smallest, will be the smallest, and this 7-digit number will be the largest. But I have to arrange in the ascending order. So after this number I have to look I have to look a number which is greater than this but the smaller than the other numbers. Okay, so if I look these two numbers, these two numbers are 5-digit numbers. 4-digit numbers will be the smallest, and then we have the 5-digit number which will be the greater, which is greater than this 4-digit number. So how can I find which one is greater? We will look which one has a greater value. This has 88,978 and this is 80,999. So clearly this one is smaller than this one. So our order will be first this 4-digit number 8,972, then we will have this 80,999, then we will have this 5-digit number 88,978. Okay, then we will have this 6-digit number, because 7-digit number will be the largest, so we have this 6-digit number is greater than this 88,978. So this 8,17,576
76, and then at last I have 11,80,789. So this is the ascending order of this part of the question. Okay, so we will move towards our next part. Now in this part again we have to find the ascending order. So again first we will write it in the digit form. This is 3,456. This is 35,40,000. So 40,000 here, 35 lakh here, 35,40,971. Then here 8,79,000. So 8,79,764. Then we have 1 crore value. Okay, so the 1 crore value will be like this. ठीक है, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपको इसी तरह लिखना चाहिए, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 एंड सो ऑन. देन एट लास्ट वी हैव 44,397. ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेंगे. अब इसकी है 4 डिजिट्स, इस नंबर की है 3, 5, 7 डिजिट. This one will have again 3 and 3 6 digit. This one will have 3, 3, 2 8 digit. And at last we have 44,000, which is a 5 digit number. So here clearly the number of digits are different, so we can tell that the smaller digit number will be the smallest value and the higher digit number will be the highest value. So I will write it, the ascending order of this series is 3,456 is smaller than, sorry I have written here symbol, different symbol. Okay, this is a greater than symbol. Okay, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे सिंबल उल्टा स्मॉलर देन का आना चाहिए. 8,972 is smaller than 80,999, is smaller than 88,978, smaller than 8,17,576, is smaller than 11,80,789, because this value is the largest value, so it should have the greatest among all. Okay, so I have written a different symbol. Okay, so I'm by mistake. So here again is 3,456 is smaller than, we have the next number is 5 digit number, which is 44,397, is smaller than the 6 digit number, which is 8,79,764, is smaller than the 7 digit number, which is 35,40,971, and at last we have 8 digit number, which is 1,79,00,000. Okay, so the next question is question number 6, in which we have to just do the opposite of what we are doing up till now. We have to arrange these numbers in the descending orders. Okay, so I think that you can do this by yourself, because इसमें बिल्कुल इसका कुछ नहीं करना है, बस उल्टा ही करना है. यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, और उसके बाद में जो डिक्रीजिंग वैल्यू होती है वो लिखते हैं. तो जो लार्जेस्ट वैल्यू से लेके स्मॉलेस्ट वैल्यू तक हमको लिखना रहता है विद द ऑर्डर. ओके, विद द ग्रेटर देन एंड स्मॉलर, ग्रेटर देन साइन. ओके, ये तो स्मॉलर देन साइन था, हमको ग्रेटर देन साइन लिखना होगा. ठीक है, तो आई विल लीव इट एज योर होमवर्क. सो नाउ वी विल
move towards our next question, okay, which is question number 7th. So question number 7 states that we have to write the place value and the face value of the underlined digits in the following numbers. Okay, so I have already told you about the place value and face value, that how what is a place value and what is a face value. Now we have to find the place value and the face value of the underlined digit. So first part we have this underline. Okay, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में बताया था. ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में मैंने आपको कैसे बताया था कि आपको कैसे निकाल सकते हैं किसी का एक्सपांडेड फॉर्म. आप पहले उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिए. प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद में जो नंबर जिस प्लेस पे है सिंपली हमको उससे मल्टीप्लाई करके फिर उसका एज ए एडिशन के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, यही बताया था एक्सपांडेड फॉर्म में. एक तरीका और है, मैं वो भी बता देता हूँ. अगर आपको इजी लगे तो आप इसको कर सकते हैं. आपको अगर नहीं लगता है तो आप मैंने जो पिछली मेथड बताई थी प्लेस वैल्यू चार्ट से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो दूसरी मेथड क्या है? मेथड सेकंड ये है कि ये जो नंबर है लिखा है मैंने, आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ मैं. ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम. तो सबसे पहले क्या करना है, जो मेरे पास नंबर्स है मैं इसको ऐसे के ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे डाउनवर्ड, एक के नीचे एक. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा कि ये जो 1 मैंने जो लिखा नंबर, उसके बाद में कितनी डिजिट्स आती है, और जितनी डिजिट होगी मैं उतने ही ज़ीरो उस नंबर के आगे लिख दूंगा. ठीक है, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो 1 पहला नंबर मेरे पास 1 है, तो 1 के बाद में कितने ज़ीरोज़ है, 1 के बाद कितनी डिजिट है, तो कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो मैं 1 के बाद में 6 ज़ीरो लगा दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब इसको फिर इंडियन फॉर्म में लिख देंगे हम, इंडियन न्यूमरेशन में कॉमा इंसर्ट करके. ठीक है, तो ये हो गया एक. फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन. फिर उसके बाद में है मेरे पास डिजिट 5, तो 5 ये रही मेरे पास. अब 5 के बाद में जितने भी डिजिट्स है मैं उतने ज़ीरो लगाऊंगा. तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो मैं उतनी 5 ज़ीरो लगा दूंगा, 1 2 3 4 5. अब इनसे इसको मैं इंडियन फॉर्म में लिख दूंगा कॉमा इंसर्ट करके. ठीक है, फिर यहाँ पे वापस प्लस. फिर है मेरे पास 4 के बाद में कितने ज़ीरोज़ है, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हियर विथ ए कॉमा इन द इंडियन न्यूमरेशन number system. Then I have 6 here or 6 here, so I will count the number of digits after 6, which is 1 2 3, and then I will write zeros, 3 zeros. ठीक है, फिर मेरे पास है 9, तो 9 के बाद में कितने डिजिट्स है, तो वो है 1 2, तो मैं 2 ज़ीरो लिख दूंगा. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद में सेकेंड लास्ट है 7, तो 7 के बाद में कितने डिजिट है, 1, तो मैं 1 ज़ीरो लगा दूंगा. और फिर इस 7 के बाद में कोई ज़ीरो नहीं है, इसलिए एज इट इज़ रखेगा. ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर वे में इक्वल्स टू साइन में जो अभी नंबर आया है मेरे पास उसको लिख देंगे. तो क्या है मेरे पास 10 लाख, 5 लाख, फिर प्लस 40,000, फिर प्लस 6,000, प्लस 900, प्लस 70 और प्लस 7. ठीक है, ये तो हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म. अब था हमको फाइंड करना था प्लेस वैल्यू. ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू वो होता है, प्लेस वैल्यू ये है कि जो भी अंडरलाइन कर रखा है वो नंबर कौन सी प्लेस पे आता है, कौन सी प्लेस डिजिट पे. प्लेस डिजिट मतलब 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस एंड 10 लाख प्लेस. ठीक है, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखा है वो 10th प्लेस पे है. ठीक है, तो 10th प्लेस पे कौन सा नंबर यहाँ पे मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रखा है, वो ये लिख रखा है, ये रहा 10th प्लेस पे, ये है 10th प्लेस पे जो नंबर है मेरे पास. ठीक है, मेरे को
वो नंबर लिखना है जो टेंस प्लेस पे है। तो टेंस प्लेस पे नंबर कौन सा है, 70 है। तो क्या होगा इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, ये रहा मेरे पास, क्योंकि मेरे को जो अंडरलाइन है वो टेंस प्लेस पे था, तो टेंस प्लेस पे नंबर कौन सा है, टेंस प्लेस पे नंबर 70 है, तो 70 उसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर था हमारा फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू की बात हम ऐसे करते हैं कि जो प्लेस वैल्यू का जो नंबर आया हमारे पास में, उसमें जो फर्स्ट डिजिट होती है वो उसका फेस होता है। ठीक है, जो भी हम कभी भी कोई सी भी चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका फेस देखते हैं। कभी भी जब भी घर जाएंगे किसी के भी, सबसे पहले उसका घर का एंट्रेंस दिखेगा, तो उस घर का क्या है, वो उसका घर का फेस है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं इस नंबर को देखूंगा तो इस नंबर का फेस क्या होगा, इस नंबर का फेस इसका फ्रंट नंबर होगा, वो है 7। ठीक है, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 5th पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो इसमें हमको इस 6 के बारे में, 6 जो अंडरलाइन है उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताना है। तो पहले इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हूँ मैं। एक्सपांडेड फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया एक तरीका, 0 5 6 9 6 3 3 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नंबर है उसके बाद में जितनी भी डिजिट्स है उतने ज़ीरो लगा देंगे उसके आगे। कितने, इसके 3 के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो आई विल राइट 8 0 आफ्टर 3। 1 2 3 4 5 6 7 8, so 1 2 3 4 5 6 7 8. Then I will insert commas according to our Indian system numeration. Okay, then I will add a plus sign here. After that I have 0, so I can write 0 or not. ठीक है, 0 को लिखने पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिखेंगे तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई से भी नंबर को हम 0 ऐड करते हैं तो वो वही नंबर रहता है। ठीक है, तो 0 अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और लिख भी दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, पर मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। ठीक है, अब फिर हमारे पास है नंबर 5 के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, and according to Indian system numeration I will put commas here and then a plus sign. Then I have a 6 number, 6 after 6 I have 1 2 3 5 digits, so I will write 5 0 here, and then Indian system numeration I will insert a commas. Then I have 9 here. After 9 there is 4 digits, so I will write 4 0 here, and then commas. Then I have 6. After 6 there is a 3 digit, so I will write 3 0. Then we have 3 here. After 3 I have 2 0, so I will write 2 0, then with a plus sign. And then second last we have 3, so I will write 0 and 6 as it is. Okay, so अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अच्छे तरीके से, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो वो होगा 30 लाख ही है ना, 30 करोड़ है, सॉरी 30 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। अब क्या करना है, अब हमको बताना है कि जिसकी अंडरलाइन नंबर है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो अंडरलाइन नंबर कौन सा है, 56 का 6 है, तो 5 और 6, तो ये 6 जो है वो उसका अंडरलाइन 5 और 6। ठीक है, तो ये जो नंबर हुआ, आई होप आप सबको दिख रहा हो, और मैंने डॉट डॉट कर रखा है। ठीक है, तो ये जो नंबर हुआ ये क्या होगा, ये उसका होगा प्लेस वैल्यू। सो आई विल राइट प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू 6 लाख।
तो अब इसका फेस वैल्यू क्या होगा, मैंने जैसे भी बताया था कि जो भी प्लेस वैल्यू है उसके जो फर्स्ट डिजिट होगा वो उसका फेस होगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब मैंने कल जो होमवर्क दिया था आपको एक्सपांडेड फॉर्म का, तो उसमें मैंने देखा कि आपने ना बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया है, विच इज़ वेरी गुड एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। ओके, सो आप भी होमवर्क करिए, मुझे सेंड करिए। आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो मुझे आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि होमवर्क करना ज़रूरी है। होमवर्क नहीं करोगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप होमवर्क करिए, मुझे सेंड करिए, और जो भी डाउट्स है वो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करिए। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द find the difference between the place value of two fives in the number 75,66,539. So the place value और दोनों हमको क्या करना है इसमें कि जो दो 5 अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है, ये एक 5 ये रहा, ये हो गया फर्स्ट 5, ये हो गया सेकेंड 5। तो जो फर्स्ट इन दोनों जो दो 5 है इनकी हमको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमको उनके बीच का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सपांडेड फॉर्म में मैंने अभी आपको ये तरीका बताया है, उसी को मैं लिखूँगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फाइनल में लिख दूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ओके, तो ये पहले हुआ। अब मैं इसको 1 बाय 1 करने के बजाय डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 7 लिखा, 7 के बाद में जितने भी ज़ीरोज़ है, जितने भी नंबर है उनको मैंने ज़ीरो कर दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 6 here and 4 0, then again 6 with 3 0, then 5 with 2 0, then 30, then 9। ओके, तो फर्स्ट 5 कौन सा, पहला 5 ये रहा और दूसरा 5 ये रहा। तो लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 is ठीक है। फिर सेकेंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 5 is 500, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वंस के नीचे वंस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, ठीक है, मैंने भी ऐसे लिखा है। अब क्या करना है हमको इनका सिंपली डिफरेंस करना है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू 5। तो पहली प्लेस वैल्यू 5 की ये हो गई, दूसरी प्लेस वैल्यू 5 की ये हो गई। अब हमको इनका क्या करना है, हमको इनका सब्ट्रैक्शन लेना है, मतलब कि डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं इसका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, so the difference is 4,99,500. This is our answer. Now we will move towards our next question, which is question number 9. Okay, so it states that write the number names of the smallest and the greatest 8-digit number having 8 different digits. Okay, हमको क्या करना है, हमको एक 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो ग्रेटेस्ट है, और एक दूसरा 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो स्मॉलेस्ट है। लेकिन कंडीशन क्या दे दी कि डिफरेंट डिजिट्स। अगर मेरे को बोला होता कि स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि 8 डिजिट हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करता है। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 1 डिजिट
जो मेरे पास जो 1 डिजिट है वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सी है, वो है 9, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सी है, वो है 1। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी मेरे पास, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है मेरे पास 99, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मेरे पास है 10, ठीक है। 10 सबसे कम होता है, फिर 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 99 जो होती है वो 2 डिजिट नंबर सबसे मैक्सिमम होती है, ग्रेटेस्ट होती है। ऐसी 3 डिजिट नंबर क्या होगी, 99 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगी 100, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते अगर मैं 8 डिजिट की बात करूँगा, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो क्या होगी 9999999, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गई ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो बताया मैंने कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, ये जितने भी नंबर्स है वो सब सेम है ना, जीरोस सब में सेम है, 9 सब में सेम है, लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वो क्वेश्चन में ये बोला है कि वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 8 एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 8 डिफरेंट डिजिट्स, ओके। डिफरेंट डिजिट्स होना चाहिए, ये तो सब सेम डिजिट हो गई, मतलब अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को 8 डिजिट लेनी होगी जो ग्रेटेस्ट होगी या स्मॉलेस्ट होगी। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास है, पहले मैं ग्रेटेस्ट लिखता हूँ, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, ठीक है। ये आपके है रफ वर्क का काम, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कॉपी में एक ऐसे लाइन खींच के कर सकते हैं लेफ्ट राइट में, और उसके ऊपर लिख देना रफ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगी मेरे पास, अब मेरे को ये तो मैंने बता दिया कि ये सेम डिजिट से है, अब मेरे को अब डिफरेंट डिजिट से बनानी है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 1 डिजिट नंबर होता है 9, ठीक है। उसके बाद में कौन सी ग्रेटेस्ट डिजिट है, 8, फिर है 7, फिर है 6 5 4 3, ठीक है। कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको 8 डिजिट बनाना है, तो मेरे पास अब कौन सी डिजिट बची है, वो है 2, ठीक है। तो अभी हो गया, ये ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है क्या, 9 8 7 6 4 5 3 2, बिल्कुल है इसमें, क्योंकि हम नंबर्स का रिपीटेशन नहीं करा है, हमको क्या करना था, डिफरेंट डिजिट्स का यूज़ करना था, नंबर्स का रिपीटेशन नहीं करना था। यहाँ पे नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा था, है ना। ये तो हुआ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होती है, 1 डिजिट नंबर की, वो होती है 1 की। फिर क्या होता है, फिर होता है 2, फिर 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब क्या करना है हमको क्या करना है, राइट द नंबर नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले अब मेरे को क्या करना है, इनको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको इंडियन नोमिनेशन में लिख दूंगा, 9,87,65,432, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर वर्ड्स फॉर्म में लिखना है वो कैसे लिखेंगे हम, 9 करोड़, ये आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। 87 लाख 65,432, ओके, ठीक है। सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है उसका जो होगा वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का कि
that what question will you get when the place value of 6 is divided by its face value in the number of this number. ओके, तो सबसे पहले जो नंबर है उसको मैं लिख लेता हूँ 46350009। हमको जो 6 है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, तो इसको सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी ये। फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू मैंने अभी जैसे बताया, उसके जो फेस में हमको प्लेस वैल्यू की जो फेस में दिख रहा है वो होगा 6। अब क्या करना है, हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू से डिवाइड करने पे जो हमको इसका आंसर जो मिल रहा है वो हमको बताना है क्या है। तो मैं 6 एज अ डिवाइजर, 6 लाख एज अ डिविडेंड, ओके, एंड द आंसर एंड द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन जो भी होगा हमको वो बताना है, व्हाट क्वेश्चन विल यू गेट। सो द क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। यू हैव टू answer this and then send me as your homework. ओके, आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन, इसको 6 को 6 लाख से डिवाइड करने के बाद में जो इसका क्वेश्चन मिलता है वो क्या है, और फिर इसके बाद मुझे बताना है। ठीक है, तो एक इसका नंबर फॉर्म में लिखना है आपको, नंबर नेम में लिखना, सॉरी नंबर नेम के फॉर्म में लिखना है। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो मेरे को बताना है कि क्या है। ओके, so that is all for your today's class. We will meet you in our next class. Okay, then goodbye, stay home, stay safe.